का पहला दिन है संसद का ये सत्र। हालांकि आज और कल 2 दिन तो औपचारिकताएं ही रहेंगी, जिसमें कि 280 आज और कल बाकी बचे सांसद शपथ ग्रहण करेंगे संसद के सदस्य के रूप में। लोकसभा का ये नया सदन, जहां पर 18वीं लोकसभा का ये नया सत्र पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर पहले मीडिया के सामने हैं, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और तमाम विषयों का जिक्र किया और तीसरी बार चूंकि सरकार बनी है तो 3 गुना मेहनत करने का दावा उन्होंने किया। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चुनकर पहुंचे वो सांसद हैं जो आज शपथ ग्रहण करेंगे बतौर संसद के सदस्य। जो जिम्मेदारियां उनकी हैं उसके निर्वहन की और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रसन्न मुद्रा में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और एक लंबे समय के बाद लोकसभा में सदन शुरू हो रहा है। और आज की ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और कई केंद्रीय कैबिनेट के उनके सदस्य इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वहां पर सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए सिटिंग अरेंजमेंट जो इस बार नजर आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस वक्त 18वीं लोकसभा का ये पहला दिन है और पहले दिन आज जो 280 सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद आगे की जो औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी की जाएंगी, जिसमें कि बाकी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण और फिर संसद की कार्यवाही आगे सुचारू रूप से चलेगी। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री, खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री, रेल मंत्री सभी वहां इस वक्त अपनी अपनी जगह पर तय स्थान पर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में आज दिन इसकी शुरुआत होगी। और प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब आप देखिए सदन में पहुंचे हैं और सभी का अभिवादन करते हुए लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। और अब से कुछ ही देर में ये कार्यवाही शुरू होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। We are meeting today on this first sitting of 18th Lok Sabha, which is a solemn occasion. A new Lok Sabha vested with great and onerous responsibilities for ensuring the welfare of the entire country and our people has been elected under the Constitution. Considering the solemnity of this occasion, and as is customary, we may all stand in silence for a short while before we begin our proceedings. Om Shanti. I congratulate all the members who have been elected to the 18th Lok Sabha. It gives me great pleasure to welcome all the members. I am sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this house and thereby strengthening the edifice and the roots
of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir, I lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons: Sri Suresh Kodikonal, Sri Talikotai Raju Thevar Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad Parliamentary Constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then Ministers of Cabinet rank, Ministers of State independent charge and Ministers of State. Thereafter, the names of other members, state, union territory wise, in alphabetical order will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the third schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of the member. The member will face the House while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members which is placed on the table. Now, Secretary General. Prime Minister Shri Narendra Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं
भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Sri Kodikonil Suresh, Sri T.R. Balu, Sri Radha Mohan Singh, मैं राधा मोहन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री सुदेव बंदोपाध्याय। कैबिनेट मिनिस्टर्स श्री राजनाथ सिंह,
मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री अमित शाह। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और सांसद के सदस्य शपथ ग्रहण कर अपने आसन की ओर जाते हुए अभी एक हस्ताक्षर वो करेंगे। तो जो कुछ औपचारिकताएं आज होनी हैं, आज और कल ये 2 दिन चलेंगी औपचारिकताएं, और जिसमें कि सभी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो बतौर लोकसभा के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों के प्रति शपथ, ईश्वर की शपथ लेते हैं। जनरल सेक्रेटरी और अन्य सदस्यों श्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो अब मध्य प्रदेश की राजनीति से निकलकर प्रदेश की केंद्र की राजनीति में आ गए हैं और कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी वे संभाल रहे हैं और बतौर लोकसभा के सदस्य शपथ ले रहे हैं शिवराज सिंह चौहान।
मैं शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शिवराज सिंह चौहान शपथ लेकर अपने आसन की ओर जाते हुए और वहां एक हस्ताक्षर कर सदस्य जो शपथ ले चुके हैं एंट्री करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्कार कर आगे बढ़कर अब देखिए यहाँ पर जो रजिस्टर आप देख रहे हैं कि बड़ा रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें कि सभी जो सदस्य शपथ ग्रहण कर रहे हैं बारी बारी हस्ताक्षर अपना उस पर करते हैं और आगे की जो कार्रवाई है सदन की ये शपथ ग्रहण की जारी रहेगी। और जनरल सेक्रेटरी श्री मनोहर लाल, अब मनोहर लाल को बुलाते हुए, मनोहर लाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग 10 साल के बीजेपी के इस कार्यकाल में एक लंबा वक्त उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री वहाँ पर बिताया और अब केंद्र की राजनीति में वे आए हैं और हरियाणा से चुनकर वे आए हैं। शपथ ग्रहण करते हुए मनोहर लाल। मैं मनोहर लाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मनोहर लाल अब लोकसभा के सदस्य के तौर पर अपने शपथ ग्रहण कर हस्ताक्षर करने के लिए दाइस की ओर जाते हुए और अब आगे की जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो लगभग 280 सदस्यों की इसी तरह से चलती रहेगी।